Hello, this is Omkar Trubey and welcome back to another episode of the Varta series. Today we are joined with the infamous group of musicians with us. They go by the name of the Bandits. How are you guys doing today? Lovely. Very good. Feeling You too just hot, but you are coming from an event. How was the Yeah, event? lovely. We enjoyed. अच्छा लगा देख के बैंड को. we were That's glad. great. We'll just get to the questions. I'll Sure. just start with the first thing I want to ask you is a very basic questions. Why the Bandits? How did you come up with that name? So first, it was a female band which was Bandit Queens. Later on, it got थोड़े मेंबर यहाँ वहाँ हो गए. So हमने सोचा हमारी आइडेंटिटी नहीं जाने देते. Bandit Queens था. अब Queens नहीं रहेंगे, the Bandits रहेंगे, and we'll include all the genders. So that's why the Bandits. Now, every artist is said to have an inspiration. Uh-huh. So, what inspires you guys to make your music? What got you into music? So everybody has different set of inspirations as such, and उन लोग सबके inspirations मिलके एक band का जो है sound आ रहा है. Like I particularly follow more of Idol, Sunidhi, more of rock stars and pop stars. I really love that genres much. More into live वाला thing. Yeah, that's mine. Rest you can ask them. I was inspired by Linkin Park when I was in college. Nice. I heard the song called Numb and I was like, this is what I want to do. So that is how I came into rock music. And if you guys, as a band, had to describe the type of music you generally make, Mhm. how would you describe it? It is Bollywood rock pop. Heavy. Yeah. Usually we don't Bollywood go with heavy. any genre or anything. We whatever feels good to our ears, we make that. So Because basically that is something. And rock is something which we are good at. So that is the element that we combine together and we bring it to the plate. Anyways, when we say Bollywood as a term, Bollywood में हर गाने as genre नहीं आते हैं. वो कोई भी आके गाना वो बॉलीवुड बन जाता है. So there are different type of genres that we see even in Bollywood music. So इसके लिए अगर कोई भी बच्चा 90s का बॉलीवुड सुन के बड़ा हुआ है तो उसका इन्फ्लुएंस मल्टीपल जॉनरास ही होगा. And that's what make our band versatile. That we don't go with only one sound. We have different type of sound in our band. We play more like multiple languages as well, so that people are getting to know ये सारी अलग-अलग music भी, not just the Bollywood. It is not restricted as such. But yes, influence of rock music is definitely there. Got it. Now, coming back to the Bandits, how did this happen? How did you guys come together and then decide to form this group or this band? She was the one. As I said, I started up with a female band. I was searching for female members, but then during that only actually I found Rohan, क्योंकि जब Bandit Queens था तब हमें शो आ चुका था और हमारे पास फीमेल गिटारिस्ट नहीं थी. So हमने रोहन को लिया ऑन गिटार्स. तो अब ऐसा था कि 6 लड़कियां हैं और एक लड़का हमारे साथ प्ले कर रहा था कंसिस्टेंटली, और आगे के शो में भी रोहन ने ही प्ले किया. बट देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, आवर ड्रमर गॉट अ शिफ्ट उनका पूरा लाइफ में ही. इज़ अ नॉन बाइनरी पर्सन, ट्रांस पर्सन. सो वी सेड कि जो मैटर करता है बैंड में रहने के लिए, दैट स्किल सेट. इफ योर स्किल सेट इज गुड इनफ, Yeah, we don't. you're the member of Bandits then. So each and every member. So I got Rohan, then Rohan got Prathamesh, and Swapnil हमारे टच में था, like हमारे फ्रेंड्स में ही था. तो लेटर ऑन मुझे लगा कि बैंड में जस्ट सिंगिंग ये नहीं चलेगा. वी आर नॉट जस्ट सिंगर्स और वी आर परफॉर्मर्स. It was more We inclusive. entertain. Yes, when you're a performer, you have to be more energetic, more powerful, crowd engaging, everything. So I think जो मेरा एनर्जी वगैरह मैच करेगा, मुझे लगा वो स्वप्निल ही दे सकता है. और प्लस उसके पास एक अलग टेक्निक्स भी है जो मेरे बैंड के लिए यूज़ होगी, जो यहाँ पे अभी इंडिया में इतना नोन भी नहीं. तो स्वप्निल बताएगा तो ज़्यादा बेटर है लाइक उसके बारे में. इट्स अ मेटल. Like to Yeah. elaborate? Yeah, so the thing is that there is some genre. There are multiple genres. We have pop, rock, jazz, then whatnot. So like I basically prefer, like I do like being a good at it. Like, I think like it's metal. So metal जो है, जो genre है, it's like थोड़ा upgraded version, more heavy version of rock. हाँ. सो लाइक उसमें जब भी कोई ग्राउल्स रहता है या फिर जो वोकल्स यूज होते हैं, एक मेटल मतलब रेज है, सोसाइटल नॉर्म्स है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है सोसाइटीज़ में, जो प्रॉब्लम्स है वो सब फ्रस्ट्रेशन निकालना और उसको लिरिकली डिस्टॉर्शन वाइज, वोकल्स वाइज उसको एक रेज के साथ बताना कि लाइक वी आर फ्रस्ट्रेटेड, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द सोसाइटी एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट. सो दैट्स हाउ मेटल वर्क्स. तो वो जॉनर मुझे बहुत पसंद है एंड आई डू दैट.
तो वो इनको भी बहुत पसंद है। तो बेसिकली मेटल तो म्यूजिक जो है वही ना, चीज़ है उतना जो कनेक्ट करती है हमको। रीच नहीं है मेटल म्यूजिक को इन इंडिया और इवन इन मुंबई। तो अभी भी हम मेटल बोलेंगे तो लोगों को लगेगा क्या मेटल, स्टील आयरन वैसा मेटल क्या? वो मेटल नहीं है। म्यूजिक को जाकर अब यहाँ पे ढूंढोगे कितने को तो मालूम है कि आयरन मेटल है, हाँ, मेटालिका ऐसा- मेटालिका मालूम है, बस टी शर्ट नहीं हाँ। टी शर्ट। तो क्या होता है ना, ये आर्ट फॉर्म इतना नोन नहीं है। तो व्हाट आई थॉट ऑफ कि ना मैं ये चीज़ को ना मे बी बॉलीवुड के साथ या फिर हमारे बैंड के साथ मिक्स करके अगर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया तो शायद इसका भी सीन आगे बढ़ सकता है। हम लोग हमेशा ये बात करते थे कि मेटल का सीन भी आगे जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पूरा पूरा मेटल ना जाए, लेकिन जैसे हिप हॉप घुसा, जैसे रैप घुसा, मे बी जैसे अलग अलग टाइप के म्यूजिक आए हैं अंदर, तो आई थॉट ऑफ कि मेटल शायद से इस तरह अगर इंट्रोड्यूस होगा विद बॉली रॉक बैंड तो वो उसका एक अलग Evolution. हाँ एक अलग लॉट्स ऑफ evolution पीपल, होगा, हाँ। बहुत सारे लोग हैं जो Organic जो views बढ़ेंगे हाँ, लेकिन। जिन लोगों को चेंज नहीं होना है। हाँ जिनको बहुत change सारे नहीं जिन लोगों को चेंज नहीं Views होना है, है। जो एक सर्टन जॉनरा पकड़ के बैठे हैं, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। वी डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। हम लोग बस वो कर रहे हैं कि वी लाइक रॉक म्यूजिक, वी लाइक बॉलीवुड म्यूजिक, हम लोग दोनों को मर्ज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो हमको करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लाइक तुम लोग ये खराब कर रहे हो यार वो खराब हाँ। कर रहे हो। Yes. इट्स बेसिकली मेरे को लगता है कि आई नीड टू पे माई बिल्स एज वेल। तो इसके लिए हम लोग जो चीज़ें भी कंबाइन करके एक म्यूजिक जो बाहर निकाल सकते हैं विच इज़ ऑल्सो कमर्शियल, विच इज़ सेलेबल, हम लोग वो करते हैं। लाइक जो हर ऑडियंस हर एज ग्रुप एंजॉय करे, सबको एंजॉय करे, जिसमें फन हो, एक अलग एलिमेंट हो, नया कुछ हो। तो दैट इज इसका Now, the next question, it's like a different question that is from the questions that are generally asked to artists. What do you do in your free time apart from music that contributes to your life musically? Like, for example, some people like to paint and they take inspiration from that. So, is there anything that you guys? वो prefer? सब बता नहीं सकते आप। मैं जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट किडिंग। No, apart from music. I write songs, like writing poetries and that I do. Like I don't do much. I just sleep on it. And what's your like creative thinking process? So, if you want to come up with a new bit or a new song, how does that process look? So see, someone has to get some idea regarding कि ये हमारा subject है. Then on subject सबका क्या thought है, we take that. देन हम मेलेडी सेक्शंस पहला बैठाते हैं कि भाई हमारा कैसा मेलेडी जाएगा, क्या जाएगा। उसके ऊपर जो लिरिक्स जो हमने लिखा है, सबके थॉट्स लिखे हैं, वो लिरिक्स कैसे बनेंगे उसके, वो सेट करते हैं और उसके हिसाब से कैसा मेलेडी सेट होगा, देन वो वैसा सेट होता है। तो मतलब पहले हमारा थॉट आया, सबसे पहले तो नेसेसरी कि हम किस बारे में हमको लिखना है, वो बहुत ज़रूरी है, वरना हम बहुत अनक्लियर रहेंगे कि अरे इसके बारे में भी बोलना, उसके बारे में। देन वी गेट सबका ओपिनियंस। और मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे अभी जो ओरिजिनल्स बने हैं मैंने खुद ही लिख दिए थे और कंपोज कर दिए थे, तो उसको आके मैंने इनको सुनाया और इन लोगों ने अपना काम कर दिया, ये लोग ने अपनी मेलेडी इनके इंस्ट्रूमेंट्स पुट इन कर दी, तो उसकी अलग ही एक आइडेंटिटी बन गई गाने की, जो मतलब मैंने नहीं कभी विजन में सोचा था कि ये ऐसा साउंड करेगा। तो ऐसा भी होता है कि पीपल लाइक अगर इनका एक गाना है वो खुद उन्होंने लिखा है, खुद कंपोज किया है, फिर हम अपना क्रिएटिव एलिमेंट उसमें डाल के हाँ वैसा करते रीअरेंज करके बेसिकली उसको अपना अरेंज idea करके एक हमको इंग्रेडिएंट्स दे दिए, हम लोग बस उसको अच्छा तड़का वड़का लगा के एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। एग्जैक्टली वैसा होता है। We'll just get to one small final question, Okay. quick question. I've gone through your Instagram page and I've seen you guys perform very frequently, meet new people, share your music. So what is that one thing that you've learned that you would like to just share with your fans, or just as an advice you would like to share to all your fans or anyone who's trying to get into music? What have you learned from your experience? एक्सपीरियंस से एक्चुअली बहुत हर एक स्टेज ने ना हमको एक एक अलग अलग एक्सपीरियंस और एक अलग अलग नॉलेज दिया है। हमें पसंद है कि हम जब लोगों से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली जैसा होता है ना कि हम एक टीम मिलके कुछ काम कर रही है, कुछ बना रहे हैं और हम लोगों तक पहुंचाते हैं, और जब वो लोगों को पसंद आता है ना, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। वी लिव फॉर दैट स्माइल, वी लिव फॉर दैट एनर्जी, है ना, दिस लाइवली थिंग वी वॉन्ट टू एक्सपीरियंस। एंड आई रियली फील जितने भी म्यूजिशियन हैं उन्होंने बाकी सब एस्पेक्ट तो है ही लाइफ के, लेकिन अपनी चीज़ जो अपना मन करे जो बनाना है ना, भले वो कहीं से भी हो, नॉट नेसेसरी आप तो काम विद तुम्हारा ओरिजिनल ही लेके आओ, तुमने कुछ बनाया तो ही होगा। तुमने जो सुना है तुम उसका भी अगर कुछ कलेक्टिव बना पा रहे हो ना, और वो अगर पसंद आ रहा है भाई, तो उससे ज़्यादा बेटर और कोई पोजीशन ही नहीं होती है फॉर एनी म्यूजिशियन और एनी आर्टिस्ट। तो मुझे लगता है दिस कीप्स अस इंस्पायरिंग कि बाबा आज ये पसंद आया तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि अब कुछ नया बनाते हैं। फिर जब वो पसंद आया तो हमको अच्छा लगता है कि यार लोगों को पता है कि
दिस इज़ व्हाट दिस बैंड डज, और ये इनके लोग हैं, ये लोग इतना ये चीज़ में एक्सेल करते हैं, तो यही थिंग है जो हमको लेकिन आगे तक लेके जा रहे हैं। सो फिलहाल तो काफ़ी अच्छा है। एक चीज़ म्यूजिशियन को कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस तो हम करते हैं, मतलब एज ए म्यूजिशियन जो टेक्निकल है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी म्यूज़िक का सब्जेक्ट है, ऑल जॉनर्स, वो सब सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हाँ। मतलब ओपन माइंड रखें। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड नहीं, जैसा हम बोलते हैं ना, आपने भी जैसा पहले क्वेश्चन पूछा कि आप कौन सा जॉनर पे जाते हैं, है ना। सो जॉनर क्या हो जाता है ना, हम बाउंड हो जाते हैं। मैंने आते थे जब बात करेंगे बट म्यूजिक इज ओशन, व्हाई डू यू वांट टू डिवाइड इट इन नदी, है ना, कीप इट ओशन। तुमको जब यहाँ जाना है यहाँ जाओ, यहाँ जाना है वहाँ जाओ, बिंदास जाओ, एक्सप्लोर करते रहो। इट्स अ नॉलेज जो तुम लेते रहोगे और वो कभी खत्म भी नहीं होगा। सो बेसिकली रिलीजन की तरह इसको डिवाइड मत करो। हाँ, म्यूजिक नहीं वी है, सी व्हाट वी कैन डू डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। सो दैट इज लाइक कि म्यूजिक है, ये है, कानों को अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, किसी कोई आज बैठ के बाहर सुन रहा है, डान्स करणे अच्छा लागतं ना, तो फिर वो कोळी गीतं असू देते, नाहीतर तुझा बेस्ट डीजे असू दे या जगातला. If you वॉट एवर यू वाइब, यू वाइब. just vibe. मुझे पता नहीं, मैं कभी से अफ्रीका के ट्राइब के गाने अगर सुन रहा हूँ. आप लिसनर्स को पूछा जाए कि आप कौन सा जॉनर सुनते हो, तो आप थोड़ी एक ही जॉनर सुनते हो. आपका जो मन होता है, अगर आप अभी उदास हो तो आप जाके सुनोगे, नहीं होगा ना. आप उदास हो, आप कुछ उदासी वाले गाने लगा दोगे, आप वो सुनोगे. आप जब खुश हो, आप कोई अच्छे गाने जो आपको अच्छे लगते हैं, पेपी लगते हैं, आप वो गाओ. Exactly. तो वैसे ही आर्टिस्ट के लिए भी होता है. वो एक ही चीज क्यों बजाते रहेगा यार पूरी जिंदगी, है कि नहीं? वो क्यों बोर हो जाओगे ना. एक टाइम बाद तुम ये नहीं बोलोगे अरे यार तेरा ब्रेकअप हो गया, क्यों सुन रहा है सब, जॉनरा बहुत खराब है. नहीं, वो नहीं बोलेगा भाई, मेरा इमोशन इसमें जुड़ा हुआ है तो मैं ये सुनूंगा. हम चूज करते हैं कि हमें क्या बजाना. प्लेइंग म्यूजिक, स्टेइंग इन म्यूजिक, दैट्स इट, दैट कीप्स अस ऑन. Well, that brings us to the end of this interview. Thank you guys all so much for Thank you. sharing, like giving your time to this interview. And thank you for inviting us. Thank you for inviting us. It was a really great experience. It was a pleasure to have you, and we wish you all the best. And then we'll see you guys in the next episode of the Varta series. Yep. Thank you. Thank you so much. Thank you so Bye-bye. much.